Yeah, very good morning. Welcome to the session of Juridux. Today we'll start with a new chapter. एक नया चैप्टर, एक नया सपना, ऐसा सोच लो. वो है क्या? Withdrawal and compromise of suits. So today's session will be on Order 23. All about Order 23. Order 23. It's all about what? Withdrawal and compromise. Withdrawal and compromise of suit. By the name of the chapter, we can have an understanding that there is a withdrawal of the suit. प्लेंटिफ ने केस फाइल किया था, ऐसा सोच लो. केस चल रहा था और ट्रायल भी शुरू हो गया था. अचानक उसको ऐसा लगा not to proceed with the matter further. He decided and changed the mind and wanted to withdraw the suit. Withdrawal. ये withdrawal कौन करता है? The one who is the plaintiff in this case. So order 23 deals with withdrawal and compromise of suit, and there are two types of withdrawals. In CPC we learn there are two types of withdrawal. Kindly note down, ये एक important order है. Two types of withdrawal. One is about absolute withdrawal. And another one is qualified withdrawal. Yes, दोनों में अंतर है. The first one, that is absolute withdrawal, is without the leave of the court. Withdrawal without the leave of court. And about the qualified withdrawal, it is with the leave of the court. It is withdrawal with the leave of the court. Withdrawal with the leave of the court. Yes, in civil procedure code we'll study with these two types of withdrawal. One is with the permission of the court and the other one is without the permission of the court. However, in both the types of withdrawal, ultimately it declares the effect of withdrawal. ये दोनों में ultimately effect of withdrawal हो सकता है. दोनों में विड्रॉल हो रहा है तो इसलिए इफेक्ट भी विड्रॉल ही होता है. सो द ऑर्डर ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर कॉम्प्रोमाइज ऑफ सूट्स एंड इफेक्ट देन. कॉम्प्रोमाइज क्या होता है? मान लो जब दोनों के बीच में डिस्प्यूट था, केस भी चल रहा था, अचानक ऐसा हो गया प्लेंटिफ और मामला को प्रोसीड करने के लिए उसका और इच्छा नहीं है. ऐसा भी हो सकता है द प्लेंटिफ डज नॉट वांट टू प्रोसीड विद द civil suit further and wants to enter with the defendant a compromise agreement. तो compromise ultimately जो actually word है वो आता है from the term settlement. So मान लो कभी कभी ऐसा होता है जब केस चल रहा है 30 साल से 20 साल से, तो प्लेंटिफ और डिफेंडेंट दोनों ही थक जाता है. तो कभी सोचता है इन लोग, देखो ऐसा केस चलेगा, फिर डिफेंडेंट केस हार जाएगा, क्या प्लेंटिफ हार जाएगा, देन अगेन द प्लेंटिफ विल गो फॉर अपील, देन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, चलते रहेगा. देयर विल बी नो एंड एंड जस्टिस विल बी गिवन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, बट दैट कैनॉट बी प्रेडिक्टेड. और सिविल केस में केस बहुत लंबा चलता है, आपको पता है. तो कभी कभी क्या होता है, it has been witnessed in many civil cases that after a long span of time litigating with a particular dispute between the parties decided to compromise with a compromise agreement that they are going to settle the dispute and will not further proceed in the court, because court में आपको proper justice पाने के लिए you have to wait.
You have to wait, and we know and we accept this that our judicial proceedings, basically those which are civil cases, are very delay in nature. डिले इन नेचर. हम लोग का जो सिविल प्रोसीडिंग्स का जो सिस्टम है, इट्स वेरी रिजिड इन नेचर. स्टेप बाय स्टेप तो चलता है, बट काफी टाइम लग जाता है एक मैटर को डिस्पोज करने के लिए. सो द ऑर्डर ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर कॉम्प्रोमाइज ऑफ सूट. ऑर्डर 23 ऑल्सो टॉक्स अबाउट द कॉम्प्रोमाइज ऑफ सूट. सो कमिंग टू ऑर्डर 23, ऑर्डर 23 रूल 1 and 2, रूल 1 and 2 लिखते जाओ. ऑर्डर 23 रूल 1 and 2. सी विड्रॉल कैसे हो सकते हैं? विड्रॉल पूरा का पूरा मैटर को आप विड्रॉल कर सकते हो, नहीं तो पार्ट ऑफ द क्लेम भी आप अबैंडन कर सकते हो. जब एक विड्रॉल वर्ड आता है, विड्रॉल शब्द इज वेरी कोरिलेटेड विथ अबैंडन. तो विड्रॉल ऑफ सूट और अबैंडनमेंट ऑफ क्लेम. अबैंडनमेंट ऑफ क्लेम कवर्स टू टाइप्स. विड्रॉल ऑफ सूट, पूरा का पूरा सूट आप विड्रॉ कर रहे हो, और पार्ट ऑफ क्लेम आप ऐसे भी विड्रॉ कर सकते हो. मान लो आपका जो क्लेम था उसमें से आप कुछ क्लेम विड्रॉ कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है. बिकॉज ऑर्डर 23 इज परमिटिंग यू कैन विड्रॉ द एंटायर सूट और यू कैन विड्रॉ अ पार्ट ऑफ क्लेम. ऑब्वियसली द कोर्ट विल आस्क अ रीजन फॉर इट, व्हाई यू आर विड्रॉइंग द क्लेम नाउ. Obviously the court will ask for it, but there is a provision of absolute withdrawal. One can withdraw the suit entirely or abandon a part of his claim with the permission of the court. So order 23 rule 1 and 2 is talking about withdrawal of suit or abandonment. Withdrawal of suit or abandonment of claim. Withdrawal of suit or abandonment of claim cover two types. दो टाइप होता है, कवर टू टाइप्स. कौन सा दो टाइप है? एक लिखो. नंबर 1, withdrawal of suit और पार्ट ऑफ क्लेम. मैंने व्हाट क्या यूज किया? पार्ट ऑफ क्लेम. विड्रॉल ऑफ सूट और पार्ट ऑफ क्लेम विथ परमिशन ऑफ द कोर्ट. ऑब्वियसली कोर्ट का परमिशन इसमें लेना चाहिए. रूल 1 and 2 में बोल रहा है, आप कुछ पार्ट ऑफ क्लेम को अबैंडन कर रहे हो, क्या पूरा का पूरा सूट विड्रॉ कर रहे हो, आपको लीव तो लेना ही है, राइट. नेक्स्ट पॉइंट इज विड्रॉल ऑफ सूट विदाउट परमिशन ऑफ द कोर्ट. फर्स्ट पॉइंट का तरह है, विड्रॉल ऑफ सूट without permission of the court. Without permission of the court. Now withdrawal without leave of the court आपका कौन सा प्रोविजन में दिया? देखो प्रोविजन तो ऑर्डर 23 रूल 1 है, बट रूल 1 का अंडर में आपका सब रूल्स है. सो देयर इज रूल 1. Just a second. So there is rule 1 सब क्लॉज 1 एक बोल रहा है एंड 4 रूल 1 का 4 बोल रहा है. व्हाट इज सेइंग? इट्स सेइंग अबाउट विथड्रॉल विदाउट द लीव ऑफ द कोर्ट. तो ये एब्सोल्यूट विथड्रॉल का बात बोल रहे हैं. विथड्रॉल विदाउट द लीव ऑफ द कोर्ट. सो रूल 1 एक्चुअली प्रोवाइड्स फॉर व्हाट? रूल 1 इज एक्चुअली प्रोवाइडिंग फॉर Rule 1 is actually providing for withdrawal of suit without the leave of the court. विदाउट कोर्ट का परमिशन नहीं है, इसमें नहीं चाहिए, तो भी आप मामला विथड्रॉ कर सकते हो. इट स्टेट्स दैट एट एनी टाइम आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट. व्हाट देखो, आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट आपने केस फाइल कर दिया, और केस फाइल करने का बाद जो प्रोसीडिंग्स, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स पेंडिंग चलता है, आप कभी भी कोई भी स्टेज में आप विथड्रॉ कर सकते हो. द प्लेंटिफ में अबैंडन हिज सूट entirely or abandon a part of the claim against all or any of the dependent.
सब डिफेंडेंट का अगेंस्ट में जो क्लेम था, नहीं तो कोई एक डिफेंडेंट का अगेंस्ट में जो क्लेम था वो अबैंडन कर सकता है, नहीं तो सूट एंटायरली विथड्रॉ कर सकता है। नाउ द राइट इज एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। पहले का जो राइट है ना, पहला का जो राइट है, द राइट इज टोटली एब्सोल्यूट। ओके, फर्स्ट राइट ये जो बोला है, द राइट इज एब्सोल्यूट, सॉरी दिस वन, ये नहीं है। The second point which I have described and the first point here which I have described, the right is actually absolute. The right is totally either absolute है। Just a second. The right is absolute here. Absolute का मतलब क्या है? इधर में आप without permission of the court, you can withdraw the suit entirely or abandon a part of the claim. So the right is absolute and unqualified, and the court cannot refuse permission to withdraw the suit and compel the plaintiff to continue with the suit. Court compel भी नहीं कर सकते, नहीं, you cannot withdraw and you have to continue the case. देखो कोर्ट भी ये देखेगा जितना मैटर विथड्रॉ हो जाएगा उसका भी बर्डन हल्का हो जाएगा। So withdrawal of suit, however, ये बात आपको ठीक से सुनना है। However, in case of such abandonment or withdrawal of suit or a part of the claim, without the leave of the court, the plaintiff shall be precluded from filing a fresh suit. जब भी कोई plaintiff suit को withdraw कर रहा है और any part of the claim और abandonment of any part of the claim और total suit withdraw कर रहा है, तो वो next time वही मैटर, वही सेम कॉज ऑफ एक्शन में, सेम पार्टी के अगेंस्ट में दोबारा केस नहीं कर सकता है। He will not be able to file a fresh suit. So the plaintiff shall be precluded from instituting a fresh suit in respect of the same cause of action. In respect of the same cause of action. Next coming, withdrawal with the leave of the court. जो पहला पॉइंट है और ये पॉइंट है, withdrawal with the leave of the court. See, this is talking about rule 1. Rule 1 का थर्ड नंबर पॉइंट जो था, rule 1 थर्ड नंबर पॉइंट, Rule 1 sub rule 3. Rule 1 sub rule 3. Now rule 1 sub rule 3 permits withdrawal of suit with the leave of the court. With the leave of the court हो सकता है, मतलब परमिशन लेकर तो आप कर सकते ही हो, बट कोर्ट आपको पूछेगा why you are withdrawing the matter. आपको satisfactory reason भी देना है. So where the court is satisfied that a suit must fail by reason of some formal defect. देखो इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ तब आपको और क्लियर आएगा। I am talking about qualified withdrawal with leave of the court. Just a second, give me only 2 minutes. Yes, I'll be talking about withdrawal with leave एक मिनट। Withdrawal with leave of the court. Withdrawal with leave of the court, ये पॉइंट है। कोर्ट का परमिशन आपने लिया है और आपको ग्राउंड्स भी दिखाना होगा। ग्राउंड्स क्या है इसमें? जब आप एक मैटर को जो आपने पहले फाइल किया उसको इंटरली विथड्रॉ करना चाहते हो एंड दैट आल्सो विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट, यू हैव टू गिव सैटिस्फैक्टरी रीजंस एंड सैटिस्फैक्टरी ग्राउंड्स। ग्राउंड्स क्या क्या है? देखो, कुछ फॉर्मल डिफेक्ट हो गया, कुछ फॉर्मल डिफेक्ट हो गया। Now what can be the formal defect? There is no definition given of formal defect here. So when the court is satisfied that a suit must fail by reason of some formal defect, or there are sufficient grounds for allowing, और मान लो कोई sufficient grounds for allowing that the plaintiff to institute a fresh suit. plaintiff को कुछ sufficient ground भी दे सकता, कुछ sufficient grounds भी है कोर्ट के सामने कुछ sufficient grounds भी है। There are sufficient grounds that the plaintiff
can be allowed, that the plaintiff can be allowed to file a fresh suit again, then a suit, then the previous suit can be withdrawal. अब ये फॉर्मल डिफेक्ट क्या हो सकता है? फॉर्मल डिफेक्ट हो सकता है, सी दिस फॉर्मल डिफेक्ट कैन बी डिफेक्ट इन द नेचर ऑफ मिसजॉइंडर ऑफ पार्टीज, नो कॉज ऑफ एक्शन, क्या प्रॉपर कॉज ऑफ एक्शन नहीं है, इस पहले का मैटर में प्रॉपर कॉज ऑफ एक्शन नहीं है, नहीं तो प्रॉपर कोर्ट फी नहीं दिया है, नो प्रॉपर कोर्ट फी, नहीं तो फेलियर टू डिस्क्लोज अ कॉज ऑफ एक्शन, failure to disclose a cause of action. तो ये सारा पॉइंट हो सकता है फॉर्मल डिफेक्ट का. मान लो कभी एक मैटर जो प्लेंटिफ ने फाइल कर दिया ऑलरेडी एंड दैट प्लेंट इज सफरिंग विद सम फॉर्मल डिफेक्ट इन दिस इंग्रेडिएंट्स, कोई पार्टी को ज्वाइन नहीं किया, नहीं तो कॉज ऑफ एक्शन ठीक ठाक नहीं है, नहीं तो फेलियर टू पे द कोर्ट फीस, इन दैट केस देयर इज अ फॉर्मल डिफेक्ट and the first suit can be withdrawn with the permission of the court and the plaintiff may be allowed to file a fresh suit again. So ये formal defect हो सकता है. sufficient grounds भी एक point है. sufficient grounds ये भी एक point है. sufficient grounds, देखो the word sufficient ground need not be generally be understand and interpreted as in the sense of aegis rem generis. aegis rem generis क्या होता है? वर्ड मैंने यूज किया aegis rem generis. when you will study about the interpretation of statutes, you will find this legal maxim aegis rem generis of the same kind. So sufficient grounds cannot be interpreted of the same kinds. नाउ जैसे फॉर्मल डिफेक्ट का अलग से आपने देखा पॉइंट्स था. फॉर इंस्टेंस वेयर द सूट वाज अ प्री मैच्योर, कभी सूट जब फाइल करने का आगे का जो स्टेज है प्री मैच्योर, और इट हैड बिकम इनफ्रक्चुअस, और वेयर द प्लेंटिफ फेल्ड द डिफेंडेंट वाज एब्सेंट इवन इफ द डिक्री वाज पास्ड, और इफ द डिक्री कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड. तो ये सफिशिएंट ग्राउंड्स भी हो सकता है जिसमें विद द लीव ऑफ द कोर्ट, जैसे लग रहा है कि क्या डिक्री जो मिलेगा वो एग्जीक्यूट वो नहीं कर पाएगा, इससे अच्छा मैटर को विड्रॉ कर लो. सो दैट कैन बी, और वेयर टू सूट्स वर फाइल्ड ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन, तो ऑटोमेटिकली एक विड्रॉ करना है आपको. सो वन कैन बी, सो ये लीव आपको चाहिए, कोर्ट का परमिशन चाहिए, इट इज इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट. अभी कोर्ट का डिस्क्रिप्शन जो है सेक्शन 151 है. Section 151 is talking about the inherent powers of civil court. अभी it is the discretion of the court to grant permission वो देगा क्या नहीं. हाँ, एक तो विदाउट है, with परमिशन जब हो जाता है तो आपको sufficient grounds कोई फॉर्मल डिफेक्ट दिखाना होगा, नहीं तो मैटर आप विड्रॉ करोगे तो आपको प्रॉपर रीजन चाहिए. पहले मैं बोल रहा हूं. So it is in the discretion of the court to grant such permission. And it can be granted by the court either on the application of the plaintiff or even suo motu. कभी कभी कोर्ट ऐसा भी हो सकता है, प्लेंटिफ को बोल सकता है मैटर को विड्रॉ कर दो. हाँ, नेक्स्ट कमिंग टू दिस पॉइंट, रूल 1 सब रूल 2, ये भी इंपॉर्टेंट है. रूल 1 सब रूल 2, जस्ट अ सेकेंड, आई एम रबिंग ऑल दिस थिंग्स. देखो एक एक पर्टिकुलर रूल का अलग अलग से मैं इसको डिफाइन कर रहा हूँ और कोशिश भी कर रहा हूँ ट्राई टू अंडरस्टैंड. रूल 1 का सब रूल 2, ये जो लिखा है इसके मेन टॉपिक है माइनर. अभी कोई माइनर के अगेंस्ट में सूट किया, क्या माइनर ने सूट किया, दैट मैटर्स. सो ये जो रूल 1 एंड 2 जो आया था, ये आया था अमेंडमेंट एक्ट 1976. व्हाट ठीक से सुनो, बाय द अमेंडमेंट एक्ट 1976 ये सब रूल 2 को जन्म दिया है, ऐसे सोच लो. रूल 2 इसलिए इनकॉर्पोरेट हुआ है. तो देयर वाज अ स्पेसिफिक प्रोविजन व्हिच हैज बीन इंसर्टेड फॉर द माइनर्स केस.
फॉर द केस ऑफ माइनर, देखो वेयर द प्लेंटिफ इज अ माइनर, और उस माइनर के केस में मैटर को, जैसे मान लो मैं माइनर हूं, मैंने केस फाइल किया डिफेंडेंट के अगेंस्ट में, और मेरा ही केस में विड्रॉ करना चाहता हूं, बट मैं माइनर हूं, माइनर कैन नॉट फाइल अ केस, उसके लिए क्या चाहिए, नेक्स्ट फ्रेंड चाहिए, गर्जन जो होता है नेक्स्ट फ्रेंड, कोर्ट कैन अपॉइंट नेक्स्ट फ्रेंड. सपोज इफ अ केस हैज बीन फाइल्ड अगेंस्ट मी एंड आई एम अंडर द एज ऑफ 16 years, आई एम अ माइनर, नाउ आई विल नॉट बी एबल टू कंटिन्यू द केस बिकॉज मेरा तो वो कैपेबिलिटी नहीं है, आई कैन नॉट एंटर इन टू अ कॉन्ट्रैक्ट, हाउ कैन आई लिटिगेट अ केस. तो मेरे लिए कोर्ट जो अपॉइंट करेगा, इफ आई एम हैविंग अ इंटरेस्ट इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर एंड आई बीइंग द माइनर, मेरा ऊपर कोई नहीं है, तो कोर्ट कैन अपॉइंट अ नेक्स्ट फ्रेंड, court can appoint a next friend, and on the behalf of that minor the next friend will appear, the next friend will litigate the matter. Obviously the next friend should be a major person. So it is in the the provision is related to the minor, that is rule 1 subclause 2. उसमें बोला where the plaintiff is a minor, neither the suit suit भी नहीं, nor any part of the claim can be abandoned, withdraw abandon नहीं कर सकते हो without the leave of the court. So point क्या है, suit or any part of the claim cannot be withdrawn without, ये strictly बोल दे, without the leave of the court, without the leave of the court. बात समझ गए हैं. Now sub rule 2 of rule 1 enacts that application for leave under provision to sub rule 1 of rule 1 must be accompanied by an affidavit of the next friend, and also if the minor of such friend is represented by the pleader by a certificate to that effect. देखो ये जो माइनर है, माइनर के बिहाफ में कौन खड़ा हो रहा है, नेक्स्ट फ्रेंड, इट कैन बी अपॉइंटेड बाय द कोर्ट आल्सो. तो जो नेक्स्ट फ्रेंड है माइनर का बिहाफ में ये मैटर चल रहा है. सपोज मिस्टर एक्स वर्सेस माइनर, तो माइनर इज डिफेंडेंट, तो माइनर के बिहाफ में कौन मैटर लड़ेगा, वो नेक्स्ट फ्रेंड लड़ेगा. तो नेक्स्ट फ्रेंड का एविडेविट चाहिए, क्योंकि जब आप एक, देखो ऐसा नहीं बोला विथड्रॉ नहीं कर सकते हो, विथड्रॉ कर सकते हो विद द लीव ऑफ द कोर्ट, यू कैन नॉट विथड्रॉ. जैसे रूल 1 बोला दैट इज एब्सोल्यूट विथड्रॉल, एब्सोल्यूट विथड्रॉल माइनर का केस में नहीं होता है. Minor can withdraw the matter, yes, if the next friend who is appearing on behalf of that minor has filed an affidavit to that effect, that the minor, that that in the interest of the minor, the case should be withdrawn. तो minor का कोई benefit के लिए मान लो next friend application कर रहा है along with an affidavit, किसका affidavit, next friend का affidavit चाहिए. वही तो सोलोमन एफर्मेशन है ना, नहीं तो कोर्ट फंस जाएगा बाद में, कैसे माइनर ने विथड्रॉ किया मैटर को और अ पार्ट ऑफ क्लेम को अबैंडन किया है. सो इट कैन बी डन. अभी मान लो माइनर का केस जो नेक्स्ट फ्रेंड चल रहा था, नेक्स्ट फ्रेंड मान लो इज अ लेमैन पर्सन, नेक्स्ट फ्रेंड हैज आल्सो अपॉइंटेड वन एडवोकेट टू लिटिगेट द मैटर. तो उस प्लीडर का भी एक सर्टिफिकेट चाहिए. तो क्या क्या चाहिए, नेक्स्ट फ्रेंड का एक एफिडेविट चाहिए मैटर विथड्रॉ करने के लिए, प्लस प्लीडर सर्टिफिकेट ऑफ द सर्टिफिकेट. That certificate will say that it is for minor's benefit, the matter should be withdrawn. It's for minor's benefit, the matter should be withdrawn. बात समझ में आया, ये पूरा क्लियर था. चलो, सो विथड्रॉल बाय वन प्लेंटिफ, ये रूल 1.5 बोलते हैं. रूल 1.5 ये छोटा है. रूल 5 किसका, 1 का. फिर से एक बार लिख देता. नाउ टॉकिंग अबाउट सब रूल 5 ऑफ रूल 1. सब रूल 5 क्या बोल रहे हैं, विथड्रॉल बाय वन ऑफ द प्लेंटिफ. सो वेयर देयर आर 2 और मोर प्लेंटिफ्स, जब 2 से ज्यादा प्लेंटिफ है, द सूट और पार्ट ऑफ द क्लेम cannot be abandoned or withdrawn without the consent of others. अभी मान लो 5 प्लेंटिफ मामला कर रहा है, पांचों का सेम इंटरेस्ट है, तो एक आदमी रिप्रेजेंट करके सबका मैटर विथड्रॉ नहीं कर सकता है, बट खुद का कर सकता है. वन ऑफ सच प्लेंटिफ्स हाइवर में अबैंडन हिज पार्ट ऑफ हिज क्लेम, हिज ओन इंटरेस्ट.
5 मान लो 5 प्लेंटिव है, ए बी सी डी वर्सेस एक्स वाई जेड वर्सेस एक्स वाई जेड। बी चाहता है क्या, आई वॉन्ट टू विदड्रॉ द मैटर, आई वॉन्ट टू अबंडन, आई वॉन्ट टू विदड्रॉ माई मैटर, आई वॉन्ट टू अबंडन माई क्लेम। इट कैन बी डन, बट बी सबके लिए ये नहीं कर सकता है बिकॉज कंसेंट चाहिए, राइट। चलो, ये विड्रॉल इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू अदर प्रोसीडिंग्स। अपील में भी मैटर विड्रॉ हो सकता है बिकॉज अपील इज व्हाट, इट इज अ कंटिन्यूशन ऑफ सूट। सो अपील इज अ कंटिन्यूशन ऑफ सूट, द प्रोविजंस ऑफ दिस ऑर्डर इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू विड्रॉल ऑफ अपील्स ऑल्सो। सो विड्रॉल, so the provisions of order 23 is also applicable to whom, is also applicable to appeal also। appeal भी withdraw हो सकता है, withdraw appeal can be done, withdrawal of appeal can be done, withdrawal of appeal can be done also। So the appellant has a right to withdraw the appeal unconditionally, हिसाब से अपील कर सकते हैं, सॉरी अपील विड्रॉ कर सकता है। एंड इफ ही मेक सच एन एप्लीकेशन द कोर्ट मस्ट ग्रांट इट सब्जेक्ट टू कॉस्ट। हाँ, ये बात मैंने बोल गया, कॉस्ट। चलो, प्लेंटिफ वर्सेस डिफेंडेंट का मामला चल रहा था और प्लेंटिफ वर्सेस डिफेंडेंट का मामला चल रहा था और ये मामला चलते चलते कम से कम 10 साल हो गया, 10 इयर्स खत्म हो गया और प्लेंटिफ अभी चाहता है मैटर को विड्रॉ करना। विड्रॉ करने के लिए वो सोच रहा है, तो डिफेंडेंट का जितना खर्चा हुआ है, रिटेन स्टेटमेंट फाइल किया, एडवोकेट फीस दिया है, मैटर को प्रोसीड किया है, जितना ट्रांसपोर्टेशन खर्चा, सब कुछ प्लेंटिफ को देना होगा कॉस्ट का हिसाब से। दिस विल बी अ रिलीफ विच विल बी गिवन टू द डिफेंडेंट बिकॉज टाइम कौन वेस्ट किया, प्लेंटिफ ने वेस्ट किया डिफेंडेंट का, तो डिफेंडेंट को भी देना है। समझ में आया, डिफेंडेंट को देना है। नेक्स्ट आई विल बी टॉकिंग अबाउट ट्रांसपोजिशन। एक इंपॉर्टेंट पोर्शन है ट्रांसपोजिशन। जस्ट अ सेकेंड। ओके, we'll be now talking about rule number, we'll be talking about rule number 1A, rule number 1A, very important, rule number 1A of order 23। थोड़ा इसके इरेज कर दो, rule number 1A of order 23। ओके, साफ हो गया। यस, नाउ ऑर्डर 23 रूल 1A, वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार मैं बोल रहा हूँ। ये वर्ड यूज किया क्या, ट्रांसपोजिशन ऑफ डिफेंडेंट्स, ट्रांसपोजिशन ऑफ डिफेंडेंट। देखो, एग्जाम्पल की तरह समझो, क्लियर हो जाएगा। मान लो एक पार्टीशन सूट चल रहा है, किसके किसके बीच पार्टीशन चल रहा है, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। तो घर में ये 5 आदमी है, प्रॉपर्टी था किसके नाम पे, एक्स, एंड एक्स डाइड इंटेस्टेड, लिविंग बिहाइंड ए बी सी डी एफ। ये 6 बच्चे को छोड़ के वो स्वर्गवास करके चला गया, ऊपर चला गया, समझ लो, मर गया। Now here A is a son, B is a son, C is a son, D is a son, E and F दोनों बहन हैं और इन लोग के बीच में एक प्रॉपर्टी का डिवीजन होगा, पता है। तो ये प्रॉपर्टी कैसे भाग होगा देख लेते एक बार। ऐसे कर लो और एक ऐसे कर लो, 1 2 3, हाउ मच, 1 2 3 4 5 6। तो A B C D E F, the property actually belong to whom, X। अभी इसका सबका 1/6 करके इसका
रेशियो निकलेगा और रेशियो का हिसाब से दे विल बी गेटिंग देयर प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ पार्टीशन, दे विल बी गेटिंग देयर प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ पार्टीशन। तो पार्टीशन के हिसाब से सबको कितना मिलेगा, 1/6 करके मिलेगा। मान लो ये प्रॉपर्टी 5 कट्टा का जमीन है, 5 कट्टा, कट्टा इज अ मेजरमेंट, और 5 कट्टा कितना होता है, 5 into 16 होता है 80 छिटक्स, 80 छिटक्स, देयर इज अ मेजरमेंट। एक कट्टा होता है 16 छिटक्स, 1 कट्टा इज इक्वल टू 16 छिटक्स, तो 5 कट्टा इज इक्वल टू 80 छिटक्स, यही होगा। तो 80 छिटक्स में कितना डिवाइडेड बाई 6 होगा, सबको कितना मिलेगा आप कैलकुलेशन कर लेना, कुछ पॉइंट हिसाब से मिलेगा, देखो ना 80 डिवाइड बाई 6 कर लो कितना मिल सकता है, 6 1 6, ओके 2 निकला, 13 पॉइंट समथिंग, 13.3 हिसाब से सबको 13.3 छिटक सबको मिलेगा, 13.3 छिटक सबको मिलेगा, ऐसे हिसाब से। नाउ प्रॉपर्टी का पार्टीशन होना चाहिए, इक्वल पार्टीशन, बट अभी तक पार्टीशन नहीं हुआ है, और घर में सबसे बदमाश जो आदमी है वो है ए, और ए ने सोचा क्या, प्रॉपर्टी को पार्टीशन कर दूं, प्रॉपर्टी को पार्टीशन कर देता हूं। एक बात मैंने भूल गया, एक वाइफ का भी पोर्शन था, एक्स का वाइफ का भी पोर्शन था, वाइफ का नाम था वाई, और वाई मरने का आगे उसका पोर्शन जो था उन्होंने गिफ्ट कर दिया किसको, एफ को, छोटी बहन को गिफ्ट कर दिया, छोटी उसका लड़की को गिफ्ट कर दिया। ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्रॉपर्टी ए बी सी डी ई का 1/6 होगा, हम लोग को तो पता चल गया, बट उसमें एक पोर्शन था सर, तो इसका मतलब और भी एक पोर्शन जोड़ लो, और भी एक पोर्शन जोड़ लो, और ये होगा 1/7, सही ना, 1/7 होगा, तो ये 80 डिवाइडेड बाई 7 होगा, राइट, और 7 1 7 होगा, ये 110 आ जाता है, कितना होता है 7 1 7 समथिंग 11.1 ऐसा कुछ मेजरमेंट आएगा, 11.1। तो मैंने इसलिए बोला क्योंकि इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड एक्स का एक वाइफ था, वाइफ का भी पोर्शन मिलेगा, और वाइफ का पोर्शन जो था वाइफ ने गिफ्ट कर दिया किसको, एफ को गिफ्ट कर दिया। तो अभी बोलो एफ का पोर्शन ज्यादा होना है सबसे, ऑब्वियसली ए बी सी डी ई एफ का कितना है, पहले मैंने बोला था कितना 1/7 होना चाहिए, बट ये जो पोर्शन है ये भी मिल रहा है, तो ये जो पोर्शन है इसको भी मिल रहा है, तो कितना इसको ज्यादा मिल रहा है, फिर इसको और एक 1/7 मिलना चाहिए वाइफ का पोर्शन, तो 1/7 जितना होगा 2/7 मिलना चाहिए, किसको मिलना चाहिए 2/7, 2 भाग मिलना चाहिए, एफ को 2 भाग मिलना चाहिए। अभी ये गड़बड़ हो गया, ए सोच रहा था सबको मिलेगा 1/7, बट एफ को वो प्रॉपर्टी जो पोर्शन एक्स का वाइफ का था, एक्स का वाइफ एफ को गिफ्ट दे दिया, तो गिफ्ट दे दिया इसका मतलब एफ का पोर्शन थोड़ा बढ़ गया, थोड़ा ज्यादा इंक्रीज हो गया, कितना हुआ है, सबको मिल रहा है 1/7 और इसको 2/7 नहीं, इसको 2/7 मिल रहा है, पूरा का पूरा 2/7, तो एफ जो है एफ ये भी मिलेगा एफ को 1/7 और इधर भी 1/7 मिलेगा, तो ये ए का जलन हो गया, और ए ने मामला किया ए वर्सेस बी सी डी ई एफ, बी सी डी ई एफ। जब केस किया है, केस फाइल करने का बाद केस चला पार्टीशन के लिए, पार्टीशन का डिक्री तभी तक नहीं आया, और अचानक ए का ऐसा सोच आया टू विथड्रॉ द सूट, उसका दिमाग में ऐसा कुछ मे बी सम इंटेंशनली उन्होंने सोचा, देखो केस करोगे तो कोर्ट तो साफ साफ कर देगा, क्या साफ साफ, कोर्ट यही बोलेगा ना, देखो एक्स का वाइफ का जो पोर्शन है, उन्होंने वाई ने प्रॉपर्टी गिफ्ट दे दिया किसके नाम पे, एफ, नाउ एफ शुड गेट मोर देन यू ऑल, एफ शुड गेट मोर देन यू ऑल, तो एफ जो इधर है एफ शुड गेट मोर देन यू ऑल। तो ये मान लो ए को पता चल गया, ए सोच रहा था सबको मिलेगा 1/7 हो तो ज्यादा हो जाता है, बट
अभी इन लोग को 1/7 नहीं मिल रहा है, उस प्रॉपर्टी में इनको 1/7 जो था ये इसका किसका कम हो जाएगा और एफ को ज्यादा हो जाएगा. एफ विल गेट मच मोर portion as compared to, because F will also get the portion of their mother also, and this was not actually easily granted by A. A ने इसलिए मामला किया था पहले, बट बाद में सोचा F को तो मिलेगा ही, बिकॉज जब ये केस मैटर कोर्ट में अल्टीमेटली पार्टीशन का बारे में ये बातचीत होगा, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम F will show the gift deed. देखो मेरे नाम पे मेरा मम्मी ने इस प्रॉपर्टी को गिफ्ट दे दिया, आई शुड गेट अ मच मोर पोर्शन देन अदर्स. तो ए ने ऐसा सोच के मैटर को विथड्रॉ कर दिया. कितना चालाक आदमी, देखो विथड्रॉ कर दिया. तो ये मैटर क्या था, विथड्रॉ हो गया क्या? नहीं चल सकता? हाँ चल सकता है. मान लो इधर भी एफ ट्रांसपोज हो सकता है प्लेंटिफ का रूप में. एफ पहले डिफेंडेंट था, अभी डिफेंडेंट होगा भी, तो एफ इज वन ऑफ द लीगल हियर. एफ शुड आल्सो गेट द इक्वल पोर्शन एंड आल्सो द पोर्शन ऑफ हिज मदर एंड आल्सो द पोर्शन ऑफ हर मदर. सो व्हेन ए थॉट टू विथड्रॉ द सूट, एफ कैन फाइल एन एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 1 रूल 10. उसके साथ और एक भी एप्लीकेशन ऑर्डर 23 रूल 1A का एप्लीकेशन फाइल करेगा और बोलेगा मैं डिफेंडेंट था, मुझे अभी प्लेंटिफ बना दीजिए, क्योंकि मेरा पोर्शन लेके सब झमेला कर रहा है, मुझे मेरा भी मिलना है और मेरा मम्मी को का पोर्शन भी मिलना है. सो आई विल गेट माई पोर्शन ऑल्सो एंड ऑल्सो माई मदर्स पोर्शन. दैट इज 2 पोर्शंस आई शुड गेट. सो कन्वर्ट मी from the defendant to plaintiff. This is called transposition. तो ट्रांसपोजिशन हो सकता है जो डिफेंडेंट था, बट केस का मैटर के ऊपर डिपेंड करता है. ओके, केस का मैटर के हिसाब से डिपेंड करता है. नाउ टॉकिंग अबाउट कॉम्प्रोमाइज. कॉम्प्रोमाइज इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट थिंग. कॉम्प्रोमाइज इज बेसिकली व्हाट? It is basically nothing. It's basically just a settlement of dispute. So compromise, how can you define the term compromise? Compromise is defined in Order 23, Rule 3. The term compromise essentially means settlement of dispute by the mutual consent of the parties behind the court or outside the court. Now, in such cases, what happens? The adversarial claims comes to an end. जितना एडवर्सरियल क्लेम्स था, डिफेंडेंट जो क्लेम कर रहा था, जो एलिगेशंस था, सब मिट्टी का नीचे आ जाएगा, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज हो रहा है मैटर. प्लेंटिफ इन डिफेंडेंट इज कॉम्प्रोमाइजिंग. सो कॉम्प्रोमाइज इज अराइव्ड बिटवीन द पार्टीज दैट पुट्स एंड टू एन लिटिगेशन. क्या मैंने बोला? एंड टू लिटिगेशन. एंड टू लिटिगेशन. लिटिगेशन खत्म हो जाएगी क्योंकि कॉम्प्रोमाइज कर रहा है. कॉम्प्रोमाइज का कुछ कंडीशन है. पहला कंडीशन होगा एग्रीमेंट होना चाहिए. ये तो दिमाग में रखो, एग्रीमेंट होना चाहिए पार्टीज के बीच में. इन राइटिंग होना चाहिए, एंड साइंड बाय द पार्टीज. 3 नंबर पॉइंट जो होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए. लॉफुल. 4 नंबर पॉइंट जो होना चाहिए, 4 नंबर पॉइंट है, it must be, ये very important point, it must be recorded by the court. It must be recorded by the court. It must be recorded by the court. पार्टीज के बीच में जो कॉम्प्रोमाइज हुआ तो वो एग्रीमेंट हिसाब से हुआ है और वो लिखित हुआ है, राइटिंग हुआ है, एंड दैट शुड बी फाइल्ड बिफोर द कोर्ट. जब कोर्ट में फाइल करोगे तो वो रिकॉर्ड बन जाएगा कोर्ट का, और कोर्ट रिकॉर्ड के हिसाब से कोर्ट विल पास अ डिक्री. व्हाट डिक्री? कोर्ट विल पास अ compromise decree. Court will pass a compromise decree. Okay. So a compromise, adjustment or a satisfaction may be recorded by the court where the proceedings are pending. Actually, कौन सा कोर्ट में आप compromise के लिए एप्लीकेशन फाइल करोगे? अंडर ऑर्डर 23 रूल 3. In that court where the case is pending. In case of a suit, it can be recorded by the trial court. इन केस ऑफ अपील इट कैन रिकॉर्ड द अपीलेट कोर्ट. मैं अपील में भी कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, यही मैं बोल रहा हूं. तो अपीलेट कोर्ट में करोगे जहां अपील चल रहा है, और सूट जहां चल रहा है उस कोर्ट में तुम कॉम्प्रोमाइज
के लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो और उसके साथ साथ कंप्रोमाइज डिक्री भी पास होगा। हाँ, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, डिस्प्यूट हो सकता है रिगार्डिंग जेन्युइननेस ऑफ कॉम्प्रोमाइज। कॉम्प्रोमाइज किया बट कितना जेन्युइन है, उस डिस्प्यूट के अगेंस्ट में एन अपील कैन बी फाइल्ड। सपोज मान लो 4 आदमी है, 4 पार्टी है, 4 पार्टी के अंदर एक कॉम्प्रोमाइज हुआ है, बट उस कॉम्प्रोमाइज को लेकर कुछ जेन्युइन, कोई एक पार्टी बोल रहा है नो द कॉम्प्रोमाइज वाज नॉट जेन्युइन, सो अ डिस्प्यूट रिगार्डिंग genuineness of compromise can always be raised. Jurisdiction of the court to try such dispute always lies with the court which recorded the compromise. तो जो कोर्ट एक्चुअली उस कॉम्प्रोमाइज एप्लीकेशन को ग्रांट किया था वही कोर्ट का जुरिस्डिक्शन बनता है, और इस कॉम्प्रोमाइज डिक्री से एन अपील कैन आल्सो बी फाइल्ड अगेंस्ट सच डिक्री। बात यह कि जब भी 5 पार्टी के अंदर एक पार्टी को ऐसा लग रहा है कि कॉम्प्रोमाइज एग्रीमेंट जो इन्होंने किया एक साथ बाय म्यूचुअल कंसेंट was not genuine, that person can raise the matter and the jurisdiction of the court will be that where the compromise was done, and also against that compromise decree an appeal can also be filed. So a party to compromise may challenge on the ground that there is no compromise or agreement, गलती से कुछ हो रहा है। So order 23 rule 3 of the court applies to civil suits, but the underlying principle of state provision applies to other proceedings also. Other proceedings में भी हो सकता है। Compromise on behalf of minor में केस में कौन होगा, compromise कर रहा है तो फिर से next friend आ जाएगा, minor आ जाएगा, right? So और एक चीज है, representative suit में कभी compromise नहीं होता है, ये rule 3 भी बोला। Yes, और एक चीज है 3B और 3A, बार टू सूट। एक बार जब कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, आप फिर से दोबारा वही केस में, वही सेम कॉज ऑफ एक्शन में, सेम पार्टी का केस में फिर से आप सूट नहीं फाइल कर सकते हो, बट यू कैन फाइल एन अपील इफ देयर इज अ डाउट इन द जेन्युइननेस ऑफ कॉम्प्रोमाइज। जब एक डाउट है, डिस्प्यूट है रिगार्डिंग जेन्युइननेस ऑफ कॉम्प्रोमाइज, तब एन अपील कैन लाई अगेंस्ट दैट कॉम्प्रोमाइज डिक्री। अपील हो सकता है, but like to set aside the decree on the ground that the compromise of which the decree was based was not lawful. कोई ऐसा फिर से दोबारा सूट नहीं फाइल कर सकता है, because that compromise decree will act as a res judicata, because that was said. Yes, an appeal can be filed. So no agreement or compromise to entertain in a representative suit. Representative suit में compromise नहीं होता है actually. No agreement or compromise in a representative suit shall be entertained without the permission of the court. कोर्ट का परमिशन तो लेना ही चाहिए। आप कभी रिप्रेजेंटेटिव सूट, मान लो कंपनी के साथ एक कंपनी का मामला चल रहा है, तो कंपनी का कोई जितना एम्प्लॉइज है उसके बिहाफ में कंपनी का डायरेक्टर जो है इज एक्टिंग एज ए रिप्रेजेंटेटिव। मान लो कंपनी ए लिमिटेड कंपनी वर्सेस मिस्टर एक्स का केस चल रहा है, तो ए लिमिटेड कंपनी में जो रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्टर, एंड डायरेक्टर इज रिप्रेजेंटिंग द होल कंपनी। मान लो डायरेक्टर का सोच है क्या, मैटर को कॉम्प्रोमाइज कर दो, डायरेक्टर के साथ मिस्टर एक्स का बाहर में कुछ कॉम्प्रोमाइज हो गया, बट बाकी का कंपनी का जो आदमी है, सीईओ, सीएफओ, कंपनी सेक्रेटरी, इन लोगों को कुछ मालूम ही नहीं है, बाकी डायरेक्टर्स को भी मालूम नहीं है, बट ये जो डायरेक्टर जो रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसको ऑथोराइजेशन दिया क्या तुम ये केस को रिप्रेजेंट करो, इसके साथ मिस्टर एक्स का कुछ अंदर में कुछ पैसा का बारे में कुछ हो गया बातचीत, और मिस्टर डायरेक्टर जो ए लिमिटेड को रिप्रेजेंट कर रहा है वांट्स टू विथड्रॉ द मैटर, वांट्स टू कॉम्प्रोमाइज द मैटर, तो ये कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता है until and unless you are taking the leave of the court, you are taking the permission of the court. जब भी परमिशन मांगोगे तब दूसरा कंपनी का डायरेक्टर का बुलाएगा क्या, that this director is wanting to compromise the suit. Are you all agree with this point? अभी कोई ऑब्जेक्शन देगा तो नहीं होगा, अभी कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। इवन मान लो एक आदमी कॉम्प्रोमाइज कर रहा है बट बाकी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा है, तो बाकी मैटर को प्रोसीड कर सकता है। सपोज इफ द डायरेक्टर वांट्स टू कॉम्प्रोमाइज, ही कैन कॉम्प्रोमाइज, ही कैन अबंडन हिज पार्ट ऑफ क्लेम, बट बाकी जो कंपनी को रिप्रेजेंट कर सकता है बाकी लोग, दे कैन कंटिन्यू द मैटर। सो दिस वाज ऑल अबाउट compromise, and previously I have also done about the withdrawal of suit. Thank you. We'll again back to the next session.